morning, students. We are together again in our online class in which we are studying chapter 3, right? And I hope that you have completed your first exercise of this chapter. Now, before proceeding further for exercise 3.2, first of all, we will study about the content. What is the concept related to 3.2 exercise? So, our first topic for 3.2 exercise is behavior, representation and consistency of lines corresponding to linear equations. What we are going to discuss about this? Behavior. What kind of behavior a pair of linear equation shows you? You have made so many graphs, right? In exercise 3.1 and before that I had given you so many examples. You must have seen that you got only 3 types of graphical representation. What was that? The lines either intersecting, it is intersecting. ये दोनों लाइंस क्या कर रही हैं? एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, राइट? और सेकंड फॉर्म पैरेलल लाइंस which never meet each other at any point. These are parallel lines. Okay? And what was the last one? Last one was coincident line. We are talking about coincident line which overlap each other. Both lines at same points passing through same solution or same number of points are known as coincident lines, or we can say that is these are the lines which overlap each other. So whenever we will solve a pair of linear equation, we will get these 3 kinds of behavior in those lines, right? So this is related to behavior. What kind of lines you are going to get after solving the problem, right? आप लोगों को या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी या पैरेलल लाइंस मिलेंगी या फिर कोइंसिडेंट लाइन मिलेंगी ग्राफ पर. सेकंड इज रिप्रेजेंटेशन. टू रिप्रेजेंट these lines on graph is known as geometrical representation or graphical representation. Another was algebraical. algebraical में हम क्या करते हैं? इक्वेशंस को प्लॉट करते हैं, सॉरी इक्वेशन को फॉर्म करते हैं. सो दैट इज योर algebraical representation. So, representation. Now come to consistency. You must be aware about this word consistent. A particular thing which consists something is related to consistency. और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये दोनों लाइन के बीच में सॉल्यूशन है या नहीं है, वही कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी का आपको दिखाता है. लाइक अगर लाइंस कंसिस्टेंट है तो व्हाट डज इट मीन? दैट दे आर हैविंग सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन दे हैव. अगर लाइंस में एक भी सॉल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट होती हैं, अदरवाइज विदाउट सॉल्यूशन दे आर नोन एज इनकंसिस्टेंट. जिनमें सॉल्यूशन नहीं होता है वो इनकंसिस्टेंट होती हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिफाइन कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी हियर. Definition of consistent. Okay, consistent of a system or a pair of linear equation. उसको हम consistent कब कहते हैं? A system of simultaneous linear equation is said to be consistent. Is said to be consistent if it has at least one solution. किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में अगर एक भी सॉल्यूशन है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट. और अगर उसमें सॉल्यूशन नहीं है तो हम उसे बोलेंगे इनकंसिस्टेंट. हैव सॉल्यूशन कंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट. इज दैट क्लियर? सो इट मीन्स व्हाइल यू हैव लाइंस intersecting, while you have 2 lines
इंटरसेक्टिंग। अगर हमारी लाइंस दो इंटरसेक्टिंग है, व्हाट डज इट मीन? मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में क्या बताया था? जिस भी पॉइंट से होकर कोई लाइन गुजरती है, दैट पॉइंट इज नोन एज सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, इजंट इट? जिस भी पॉइंट से कोई लाइन होकर गुजरती है, वो पॉइंट उस लाइन का सॉल्यूशन होता है, राइट? अब यहां पर they are having a common point. Both lines, let's suppose this line L1 and this is L2. These two lines are intersecting at common point P, जिसके coordinates है x, y. ये दोनों का common point है, तो दोनों का common solution भी होगा. Common point P x, y. So इसका मतलब क्या हुआ? ये जो common point है वो L1, L2 दोनों का ही solution होगा, क्योंकि लाइन पे जितने भी पॉइंट होते हैं वो उस पर्टिकुलर लाइन के सॉल्यूशन होते हैं, और ये पॉइंट दोनों लाइंस पर एग्जिस्ट कर रहा है. इट मींस दिस पॉइंट इज सॉल्यूशन, P इज सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि इस पॉइंट के अलावा वो कहीं और मीट नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? यूनिक सॉल्यूशन. P इज सॉल्यूशन विच इज यूनिक. कैसा सॉल्यूशन है ये? यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि वो एक ही पॉइंट पर मीट कर रहे हैं. सो P इज यूनिक सॉल्यूशन इन दिस. इंटरसेक्टिंग लाइंस में यूनिक सॉल्यूशन हो गया. और हमने अभी क्या पढ़ा? अगर एक भी सॉल्यूशन है तो वो लीनियर पेयर क्या होगा? कंसिस्टेंट. सो इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर आती हैं तो सिस्टम क्या होगा? कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट. दूसरा टाइप हमने क्या पढ़ा था? दूसरा टाइप वाज पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस व्हिच नेवर मीट ईच अदर फॉर एनी पॉइंट. इट मींस इन दोनों के बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता. सो व्हाट डज इट मीन? इट मींस कि दोनों में कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा. इनके अपने अपने सॉल्यूशन जरूर होंगे, लेकिन इन दोनों लाइन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता जिसमें वो दोनों सेटिस्फाइड हो. देयर इज नो सॉल्यूशन. सो एज दीज लाइंस आर पैरेलल लाइंस, दे हैव नो सॉल्यूशन. और अभी मैंने क्या बताया था? A system of simultaneous linear equation is said to be inconsistent if it has no solution. So parallel lines में कोई solution नहीं होता, इसलिए ये क्या होगी? Inconsistent. Inconsistent because it has no solution, right? Last, your third is a line L1 and L2. Both are having same points. Both are having same points. So हर लाइन के infinitely many solutions होते हैं, तो कोइंसिडेंट लाइन के भी infinitely many solutions होंगे, क्योंकि ये हर पॉइंट पर एक दूसरे से मीट करती हैं because they overlap each other. So every point is the solution of these two lines. Therefore, it has infinitely many solution. और ये किस टाइप की लाइन है? coincident lines. So as it has infinitely many solution और ये coincident line है, तो इनको हम बोलेंगे consistent. क्यों बोलेंगे consistent? Because इनके बहुत सारे solutions होते हैं. और अभी मैंने बताया था डेफिनेशन में कि consistent का मतलब है अगर एक भी solution है तो वो consistent होंगी ही होंगी. और coincident line में तो so many solutions are present. Therefore these lines are consistent. यानी तीनों रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ और सिर्फ पैरेलल लाइन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है. नाउ क्वेश्चन अराइज. दिस अराइजेस दैट कि अगर हम ग्राफ नहीं बना रहे तो क्या पेयर ऑफ लाइंस को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को देखकर
हम ये बता सकते हैं वेदर दे आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, और they are parallel, intersecting, or coincident lines. So here I am going to tell you, without making graph we can present this thing also, whether the linear equations are having common solutions, means unique solutions, so many solution, or no solution. I am talking about same without graphical representation. So here we have one more table. Now here we are going to discuss about without making graph. अगर हम ग्राफ नहीं बनाते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है आपके पास, इट इज इंटरसेक्टिंग और पैरेलल और इट इज कोइंसिडेंट. इसके अलावा आप विदाउट ग्राफ इसके अंदर सॉल्यूशन है नहीं है ये भी पता लगा सकते हैं. एंड लास्ट, वेदर इट इज कंसिस्टेंट और inconsistent, we can tell this thing also with the help of coefficients. I hope that you must remember about the coefficients. If I am going to write standard equation of any linear equation, so I am writing ax plus by plus c is equal to 0. This is the standard equation for linear equation, right? So the multiple of variable, this a, is called coefficient of x variable. a किसका कोफिशिएंट है? x वेरिएबल का. Similarly, b is the coefficient of y variable and c is constant. So are you getting me? जो मल्टीपल में दिया होता है कांस्टेंट इंटीजर वेरिएबल्स के साथ, वो कोफिशिएंट कहलाता है. With the help of these coefficients, we are going to complete our journey to find out these all information about pair of linear equations, right? So here I have one example in which we have to see it. First of all, I will tell you each and everything, but मैं आपको ये बोलूंगी कि इन दोनों लीनियर इक्वेशन को मिलाकर के आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है. ओके, तो आप इसको खुद ग्राफ को ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि जो मैंने आपको बताया है वेदर इट इज ट्रू और नॉट. ओके, सो आई एम राइटिंग डिफरेंट थिंग्स. हियर आई एम टेकिंग कोफिशिएंट्स. फ्रॉम फर्स्ट, इफ आई विल टेक A1 coefficient of x in first linear equation. What is the value of A1? It is 1. What is the value of B1? Here it is, with sign you have to take the coefficient. With sign. Okay. So it is B1 minus 2. C1 is not there. Therefore constant is 0 here. Am I clear? From second, this was from equation first and second equation. This is the pair of linear equation. The coefficient of second equation, I am representing it with a2. The coefficient of x in second equation is a2. The value is 3. इसकी वैल्यू कितनी है? 3. b2 की वैल्यू कितनी है? 4. and c2 is minus 20. अब हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन होगी जब हम इन कोफिशिएंट्स के रेशियो कंपेयर करेंगे. वी हैव टू कंपेयर द रेशियोज ऑफ दीज कोफिशिएंट्स. हियर वी हैव a1 upon a2. a1 upon a2 is 1 upon 3. b1 upon b2 is equal to minus 2 upon 4, or we can write it minus 1 upon 2. Any query? You must understand 2 to the 4 minus 1 by 2. Now last, C1 upon C2. It is 0 upon minus 20. So it is again 0. When we divide
0 by any of the digit, we always get answer 0. जब भी हम 0 को किसी भी डिजिट से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है, राइट. Here I am going to compare the ratios. यहां पर मैंने क्या देखा कि जो A1 upon A2 रेशियो है और B1 upon B2 रेशियो है, these are not equal. These are not equal. A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2 because 1/3 minus 1/2 के इक्वल नहीं होता है. जैसे ही हमने ये देखा कि A1 upon A2 और B1 upon B2 इक्वल नहीं है तो हमें कॉन्स्टेंट्स की रेशियो को कंपेयर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. जैसे ही मैंने देखा रेशियो ऑफ A1 upon A2 B1 upon B2 के इक्वल नहीं है, वैसे ही मुझे पता चल गया लाइंस, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विल बी इंटरसेक्टिंग लाइन. बेशक आप चेक कर लीजिएगा और मैंने आपको बोला भी है यू हैव टू ड्रॉ ग्राफ एंड चेक वेदर दीज आर इंटरसेक्टिंग और नॉट. सो यू विल गेट इंटरसेक्टिंग लाइंस. इंटरसेक्टिंग लाइंस. ओके. एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन में आपको क्या पता चला? एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन में आपको क्या पता चला? एल्जेब्रिक से हम क्या निकालते थे? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ओके. सो अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन है तो एक कॉमन पॉइंट पर मीट करती हैं, जो मैंने बताया था यूनिक सॉल्यूशन. सो दे हैव यूनिक सॉल्यूशन. ओके. और जब इनके पास सॉल्यूशन है तो ये क्या होंगे? इनकी कंसिस्टेंसी क्या होगी? इट इज कंसिस्टेंट. ओके. तो अभी मैंने आपको क्या बताया? अगर वी आर टेकिंग रेशियोज ऑफ कोफिशिएंट्स, A1 upon A2 B1 upon B2 के इक्वल नहीं है तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और अगर सॉल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट होंगी. नाउ आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल. I have taken another example. See and check the coefficients of these equations. First equation and second equation. This is a pair of linear equation. Here we have A1, A2. A1 upon A2. Now you are very much clear what is A1. A1 is the coefficient of x from first equation. तो A1 हमने क्या लिया है? फर्स्ट इक्वेशन से x का कोफिशिएंट. दिस इज A1. सो A1 is 2. A2 is the coefficient of x from second equation. This is A2. So this is 4. Clear? Now B1 upon B2. Once again, what is B1? B1 is the coefficient of y from equation first. B1 y का कोफिशिएंट है जो हमने फर्स्ट इक्वेशन से लिया है, एंड B2 y का कोफिशिएंट है जो हमने सेकेंड इक्वेशन से लिया है, राइट. दिस इज B2. सो 3 upon 6 and last is C1 upon C2. What is C1 here? Constant. Minus with sign you have to take. Once again I am telling you with sign. Okay. So minus 9 upon minus 18. Now check it. 2 1s are 2, 2s are 4, 1/2. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 1/2. 9 1s are 9, minus से minus cancel हो गया. 9 2s are 18, 1 upon 2. All are equal. So here we got A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. फिर से मैंने आपको बोलना है कि इस पेयर का आपको ग्राफ बनाकर देखना है और चेक करना है कि लाइंस किस तरह की आती हैं. व्हाट काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन ग्राफ यू विल गेट. ओके. लेकिन यहां मैं आपको बताती हूँ विद द हेल्प ऑफ रेशियोज व्हाट काइंड ऑफ लाइंस आर दीज. इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो होगा कोइंसिडेंट लाइंस, ओवरलैपिंग लाइंस जो एक दूसरे पर ओवरलैप करती हैं. अगर ये तीनों रेशियोज इक्वल आते हैं तो लाइंस क्या होती हैं? कोइंसिडेंट. सो लाइंस आर कोइंसिडेंट.
और कोइंसिडेंट है तो कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, बिकॉज उनके जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सब कॉमन पॉइंट्स होते हैं और हर लाइन में इनफाइनाइटली नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, देयरफॉर इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशन। और अगर इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं तो भी ये क्या होगा? कंसिस्टेंट। एक भी सॉल्यूशन है या बहुत सारे सॉल्यूशन है तो ये क्या होगा? कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ओके, एंड लास्ट आई एम टेकिंग another pair of lines. Now we have third example, equation 1, equation 2. Okay, here we have a1 upon a2. फिर क्या कर रहे हैं हम? फिर से रेशियो निकाल रहे हैं कोफिशिएंट्स की। a1 क्या है यहाँ पर? 1, भूलना नहीं है ना। फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो a1 है और जो सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है वो a2 है, राइट? a1 upon a2, so 1 upon 2. Now b1 upon b2, that is 2 upon 4. साथ साथ इसको कर देते हैं, 2 1 2, 2 2 4. This is 1/2. Last is c1 upon c2. c1 is -4, c2 is -12. 4 3s are 12. So this is 1/3. Here what we are seeing, therefore we have a1 upon a2 is equal to b1 upon b2. a1 upon a2 का रेशियो b1 upon b2 के रेशियो के इक्वल है, विच इज हाफ बोथ द साइड. ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 upon c2. जब ये कंडीशन होती है, जब फर्स्ट दो कोफिशिएंट्स का रेशियो तो इक्वल होता है और कांस्टेंट का रेशियो उनके इक्वल नहीं होता है, तो ऐसे केस में यू विल गेट पैरेलल लाइंस. कैसी लाइंस मिलेंगी आपको? पैरेलल लाइंस. सो ग्राफिकली यू विल गेट पैरेलल लाइंस, यू विल गेट पैरेलल लाइंस. अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होगा आपको पता होना चाहिए. जो पैरेलल लाइंस होती है वो कहीं भी मीट नहीं करती है एक दूसरे को, इसलिए उनमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है. इट हैज नो सॉल्यूशन. और जिसमें सॉल्यूशन नहीं होता है वो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है. दैट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज inconsistent. So by the help of these ratios you can find out what kind of graphical, algebraic or consistency you are going to get with this solution. I am giving you in short in a table how to get it.